is the cost of capital ढूंढ ले लिया cost of capital so under the cost of capital concept, first of all we need to understand a few things. First of all, if you people remember correctly, we talked about WACC. What is this? It is WACC. It is Weighted average. yes, it is weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital. Now, if you need to understand this weighted average cost of capital, it is the cost of the entire cost structure of a company, right? It is the cost of the entire cost structure of the company. For example, if I talk about a company, for example, this company has different funding patterns. It means the company is getting the funding from the different sources. These are the sources. This is the second source and third source. These are the different sources of funding. Now, for example, the company is getting the funds. Company is getting the fund from preference shareholdings. It means the company has issued the preference shares, and through preference shares, company has got some financing. Okay? So this is the preference shares. They have preference shares in their capital structure. Okay? इसके अलावा they have equity shares in their capital structure. Equity shares in their capital structure. And okay, let me add one or two things also to give you the correct idea. Now, another thing is they have debt money. They have debt money. Debt money may include the debentures, long-term loans, and bonds. Is it clear? सबको clear है ये वाली बात? Yes, sir. Okay, good. इसके अलावा कंपनी also has some retained earning. यानी कि कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या यूज कर रही है? दे आर यूजिंग द रिटेन्ड अर्निंग एज वेल. Retained earnings as well. Now look at this. So for example, if the company has used the preference shares, company has asked for the preference share capital, obviously the company will have to pay certain amount, right? Company will have to shell out some certain amount in order to pay back on their, this is the return. This is the return to the preference shareholders. आपने उनसे पैसा लिया, वो आपको क्या दे रहे हैं वापस? वो आपको दे रहे हैं, I mean, उन्होंने आपको पैसा दिया, which is the inflow, or in return, what we will pay or the company will pay is the dividend. Yes or no? Is it clear? Yes, sir. Okay. In case of the equity shareholder, although it is not a compulsion, but still we are considering if the equity shareholders, they have given the money, they are the true owner of the company, then they can also get the return. In case of the debt money is more or less more certain money, right? Debt money involves less risk because we all know the debt holders or the debenture holder, the long-term loans holders or the bond holders. These are the people, those who are having the preference over the offer over the assets of the company. यानी कि अगर कंपनी की assets पे सबसे पहला हक किसका होता है? डेट मनी होल्डर्स का होता है. ये तो हमें पता है ना, या नहीं? Yes, sir. Right. So if I sequencing it, now we can say the first one is the debt money holder, they get their return, and preference shareholder, they do come on second number, and equity shareholder, they have the residual claim over the assets of the company. और आपसे कभी भी ये definition पूछी जाए, what is this equity shareholdings? Equity shareholding is nothing but they have what? They have the residual claim over the assets of the company. बचा कुचा अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी ठीक है. तो अब आपने प्रेफरेंस शेयर से सिर्फ पैसा रेज किया, आपने इक्विटी शेयर से पैसा रेज किया और आपने डेट मनी से रेज किया.
तो इन सब की कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी, ऑब्वियस है. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग, वी कॉल इट specific cost of capital. Specific cost of capital. So we will calculate the specific cost of capital of first option. We will calculate of second option. We will calculate the specific cost of capital of third option, and we will also calculate. मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ फोर, बिकॉज ये सीक्वेंसिंग थी, राइट, कि किस सीक्वेंस में उन्हें पैसा वापस मिलता है. तो फोर्थ नंबर लिखना इट वुड बी अ रॉन्ग थिंग यहाँ पर, इसलिए मैं फोर्थ नंबर. हाँ, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि यू कैन ऑल्सो एंड यू हैव टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ रिटेन अर्निंग एज वेल. अब आप बोलेंगे सर रिटेन अर्निंग की तो कोई कॉस्ट नहीं होती है, ये सुनो कह सकते हैं आप. ओके भाई, रिटेन अर्निंग यानी कि आपके पास पैसा आया, आपने प्रॉफिट अर्न किया, ऑल यू डिड इज यू डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर्स. कैन वी से दिस? Yes, sir. ओके, Opportunity cost होती है but वेरी गुड वेरी गुड, हम उसी की बात कर रहे हैं. आई बिकम सो क्रिएटिव दीज डेज. मैं ऐसे ही आजकल थोड़ा सा ये सब यूज कर रहा हूँ, तो स्क्रीन भी काफी क्लीन लगती है उससे. तो ओके फाइन. ओके, सो रिटेन अर्निंग की बात कर रहे हैं. रिटेन अर्निंग की बात कर रहे हैं तो देखिए, रिटेन अर्निंग की जो कॉस्ट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री फर्स्ट थ्री ऑप्शंस एंड द फोर्थ ऑप्शन. Retain earning has its cost, yes, it is correct. But the retain earning has no out of pocket cost. Retain earning की अलग से कोई कॉस्ट नहीं है. मान लीजिए मेरे पास प्रॉफिट आया, मैंने शेयर होल्डर को 10% क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, 90% प्रॉफिट इज रिटेन्ड. Now the 90% profit is retained. Why this 90% profit is retained? Because I want to use this 90% profit for the growth purposes projects. ठीक है, मैं प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहता हूँ पैसा. तो देखा जाए, अगर डायरेक्टली देखा जाए, अगर आप प्राइमा फेसी, देर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व इन द रिटेन अर्निंग, यस, बट वी हैव द काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हियर. कैसे? तो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट को क्या कहा जाता है? रिटेन अर्निंग कॉस्ट इज समथिंग व्हाट? रिटेन अर्निंग कॉस्ट इज समथिंग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट? इम्प्लिसिट कॉस्ट, बिकॉज ये आपकी डायरेक्ट कोई कॉस्ट नहीं है, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं आ रही है आपकी, ठीक है, लेकिन इट हैज द इम्प्लिसिट बेयर्स, right? Why this retained earning has an implicit bearing over the cost of the company? The simple reason, मान लीजिए आपने 90% प्रॉफिट को रोक लिया. अब आपने 90% प्रॉफिट रोका है, देयर इज अ पर्पस, एंड you have retained this 90% of the profit because you want to use this 90%, you want to channelize this 90% of the profit for your growth projects. अब आप अपने ग्रोथ प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न एटलीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे? आप उतना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे जितना आपके शेयर होल्डर्स को मिल सकता था अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते. यस और नो? yes, sir. राइट भाई, इतना तो आपको कम से कम चाहिए, वरना शेयर होल्डर्स तो मतलब दे विल टॉपल द एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, दे विल से कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, हमें अगर 10% रिटर्न मिल रहा था इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, एंड डिविडेंड इज नियर मनी, राइट, आपको जल्दी मिल जाता है, प्रेजेंट में मिल जाता है. तो इस केस में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर उसको प्रोजेक्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं, if they have decided that they are not going to use this 90% for the distribution, तो उनको एटलीस्ट इतना तो चाहिए जितना शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली मिल सकता था. ऑल्दो शेयर होल्डर ऑलवेज डिमांड मोर, बिकॉज अगर आपको 10% डिविडेंड रिटर्न मिल रहा था और कंपनी ने रिटेन कर लिया, नाउ यू विल एक्सपेक्ट 12% और 13%, बिकॉज देयर इज अ टाइम वैल्यू गैप. यस और नो क्लास? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी. रिटेन अर्निंग हैज इट्स कॉस्ट विच इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट, एंड मिनिमम रिटर्न which shareholder could have earned, which shareholders would have earned through dividend. ये तो आपको चाहिए ही चाहिए.
Now if I talk about these things, like first three, this, this, and this, they have the explicit cost. They have no implicit cost. Preference shares, because it's out of pocket cost. आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लिया, आपको उन्हें अब डिविडेंड देना है. इक्विटी शेयर होल्डर से लिया, समवॉट आपको उन्हें पैसा वापस करना है. इन केस ऑफ डेट मनी, यस, ये तो कंपल्शन है इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड financial cost, which is the interest. ठीक है, तो ये वाली cost क्या है? In first three cases, in these first three cases, they are what? They are, बताइए. Explicit. Explicit cost. Yes, they are explicit cost. ये हमें ध्यान रखना है. तो ये तो था एक जनरल बैकग्राउंड इन ऑर्डर टू स्टार्ट विद दिस. Okay, fine. So what is the weighted average cost of capital? Weighted average cost capital and the specific cost of capital. A specific cost of capital is the cost of capital of every specific fund sources. प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अलग निकलेगी, इक्विटी शेयर होल्डर की अलग कॉस्ट निकलेगी, डेट की अलग निकलेगी एंड रिटेन अर्निंग की अलग निकलेगी. दे विल बी कॉल्ड एज द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बट अगर इन्हें ये कहा जाए कि भाई व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और व्हाट इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोजेक्ट और व्हाट इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, तो आपको उसकी एक एवरेज कॉस्ट निकालनी होगी विच इज नॉन एज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यस क्लास. सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा, समझ ओके नहीं आया. ओके फाइन, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से ही मैं करूंगा. एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैंने मेंशन भी किया हुआ है. हाँ, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने डेट के थ्रू पैसा रेज किया एंड इट हैज अ मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख. दिस डेट हैज मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख. इसके अलावा company has also equity share capital which has the market capital of rupees 2 lakh. Now if I talk about the cost of debt, cost of debt जैसे तैसे आपको पता लग गया कि भाई cost of debt कितना है. आपको पता लगा, it is cost of debt is 6% and the cost of equity, अच्छा, cost of equity should be higher or lesser than this 6% in general. It will be higher, sir. Yes, it will be high because the equity shareholders, they are exposed to more risk in comparison to the debt holders. ठीक है, that's why they demand more return. ठीक है, it's a very simple thing. The cost of equity is 12% for example. Now look at this. If someone asks you to calculate the weighted average cost of capital, it's a very simple. Very simple because if you look at the capital, total capital structure of this company. Yes. Yes. The total capital structure of this company. Now, if you look at this, the total capital is 3 lakh. Yes or no? Yes, sir. And it is correct to use the weighted average cost of capital. You cannot directly average it out. 12% plus 6% divided by 2, 9%. No, it is not the way we do it. ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज का मतलब अब देखिए, अब 1 लाख का वेटेड कितना है 3 लाख में? ओनली 33%, और आई कैन से 1/3. 1/3. यस, तो 1/3 6%. यस, प्लस 2/3 12%, and divided by what? Divided by 3 lakh. 3 से तो डिवाइड ही है ना ऑलरेडी. ठीक है, आप मुझे बताइए कितना आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल? 10%. यस, 10%. 2% इसका प्लस 4 multiplied 2 which is 8%. Now look at this.
10% is the weighted average cost of capital. Can we say this? Can we say this? Yes, sir. राइट, सो इट इज समथिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इससे ये पता लगता है कि भाई इस कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, यानी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दिस company's project, or if they are using any project, it should be 10%. It means company company will start discounting every project by at least 10%। ठीक है, कंपनी अपनी हर प्रोजेक्ट को 10% डिस्काउंट करेगी इन ऑर्डर टू नो कि क्या उस प्रोजेक्ट से आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। समझ आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमने समझा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक बेसिक्स। अब हम बात करते हैं, एज आई टोल्ड यू, वी आर नाउ स्टार्टिंग विद स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी हम ये देखेंगे हर एक सोर्स की स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या क्या होती है। तो आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेट से, यानी वी आर स्टार्टिंग विद द कॉस्ट ऑफ डेट। समझ आया? हम कॉस्ट ऑफ डेट यानी हम डेट की कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू चेंज माय स्क्रीन। इन केस इफ यू वांट a screenshot, please take it and then I'll change it. Done, sir. Okay, fine. ठीक, now okay, fine. Now the first thing is cost of debt money, cost of debt funds. Okay, okay, first of all tell me the cost, I mean cost of, I mean sorry, the debt. It can be the debentures or the bonds और इट कुड बी द लॉन्ग टर्म लॉन्स। ठीक है, ये तीनों चीज हो सकती है। जब हम डेट की बात करते हैं तो इसमें पॉसिबली ये तीन तरह के सिक्योर्ड डेट्स आ सकते हैं। जब हम सिक्योर डेट की बात करते हैं तो आई हैव टू आस्क वन क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि डेट मनी है, व्हाट काइंड ऑफ व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस डेट फंड? इज इट रिडीमेबल और इरिडीमेबल? अगर मैं डेट फंड की बात, Irredeemable. irredeemable Yes, sir. और ओके irredeemable, यानी कि डेट मनी इज irredeemable। ठीक है, एंड ओके हाउ इट इज irredeemable? So we don't make any reserve for debt fund. Sorry? Like, sir, in the case of debentures, we make DRR while accounting. Okay. Mm-hmm. But in the case of debt fund, we never make any reserve for that. Like, if we default on debt money, then what we will do? We don't have any reserve for that. Okay, and what is the difference? I mean डिवेंचर एंड डेट्स क्या अलग अलग हैं ये? अलग क्या ज्यादा नहीं है पर थोड़े से तो है। नहीं बच्चे, मैंने क्या बताया आपको, कॉस्ट ऑफ डेट फंड की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें इंक्लूड है डिवेंचर्स की कॉस्ट, इसमें इंक्लूड है बॉन्ड्स की कॉस्ट, इसमें इंक्लूड है आपके लॉन्ग टर्म लोन्स की कॉस्ट। समझ आया? ठीक है, Yes. हाँ, हमेशा ध्यान रखना, आपको ये पता होना चाहिए। आई एम सरप्राइज कि आपको अभी तक नहीं पता है कि डेट फंड्स कैन नेवर बी व्हाट इरिडीमेबल। इन रियलिटी द डेट फंड कैन नेवर बी इरिडीमेबल। आपने पढ़ा जरूर होगा रिडीमेबल डिवेंचर्स, इरिडीमेबल डिवेंचर्स, याद आ रहा है आपको? Yes, sir. राइट, तो वो जो चीज आपको याद आ रही है वो आपने थियोरी में पढ़ी है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, डेट मनी का नेचर ही ये है ना, वैसे आपको पैसा वापस करना है, तो डेट मनी का नेचर क्या है?
डेट का ऑब्लिगेशन क्या होता है? डेट का ऑब्लिगेशन क्या होता है कि आप क्या करेंगे, अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट, आपको सबसे पहले आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। इफ यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे द इंटरेस्ट पेमेंट, इन सच अ सिचुएशन द कंपनी में गो बैंकरप्ट, ठीक है, बिकॉज इनका जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो जरूरी होता है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है whether the company is earning profit or not, and at the same time debt fund should always be redeemable in reality, ठीक है। Although when we read the theoretical things, so in theory what we read, in theory we read there are two type of debt funds which are redeemable and irredeemable. समझ आ रहा है सबको, right? Yes, sir. Okay, so redeemable फंड्स की हम बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं इरिडीमेबल डिवेंचर्स बोल लो आप, ठीक है। Although in reality it is not there, irredeemable. Spelling is right, irredeemable. I think spelling is irredeemable, fine. ठीक है. And now the redeemable. If I talk about the irredeemable debentures or the debt money, redeemable debt money is non-existence in reality, as I told you. क्योंकि अगर आपने डेट यानी आपने उधार लिया है, आपने कर्जा लिया है, तो आपको वापस करना है। देखो कर्जे से पता ही लगता है ना, कर्जा है समथिंग आपको वापस करना है। No matter the time period could be 30 years, 20 years, 40 years of the debentures, but at the same time it is always irredeemable. Sorry, it should be always redeemable, राइट। तो इरिडीमेबल के केस में यानी आपके बुक्स में ये कॉन्सेप्ट बताया गया है, ऑल्दो इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट हमें क्योंकि आपके सिलेबस में है इसलिए मुझे डिस्कस करना होगा। जब हम बात कर रहे हैं इरिडीमेबल फंड्स की, इरिडीमेबल फंड्स की आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग तरह से निकलेगी इन कंपैरिजन टू द रिडीमेबल फंड्स, ठीक है। तो कैसे इसको किया जाता है एक बार देख लेते हैं। इसको ये समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड वन और टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, और देखिए आपके हर केस में काम आएगा। जब भी आप पैसा लेंगे, जब भी आप फाइनेंस करेंगे, तो क्या क्या होगा वहां पर? दो ही चीजें हो सकती हैं। What can be done in case if we are financing our different projects and we are taking money from the different projects, ठीक है, from the different sources, not project। तो मान लेते हैं आपके सबसे पहले अगर आप मान लीजिए शेयर आप इशू कर रहे हैं, आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, आप बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो व्हाट will be the inflow is the money which you will receive, yes or no? Yes Yes. class, तो इन्फ्लोज तो वही होंगे ना जो पैसा आपको मिलेगा, तो इन्फ्लोज आपके वो होते हैं। आप कंपैरिजन ध्यान रखना है मैं क्या बात कर रहा हूँ, इन्फ्लोज। अब इन्फ्लो बेसिकली इसको हमें कह सकते हैं इशूड प्राइस, जितने में शेयर इशू किया गया, इशूड प्राइस। बट हो सकता है इशूड प्राइस में डिस्काउंट भी इन्वॉल्व हो इन सर्टेन केसेस, राइट। डिस्काउंट पॉसिबल है ना, डिस्काउंट आप दे Yes. रहे हो, ठीक है। तो जितने का इशू प्राइस है उससे कम पर आपका आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल इफ द शेयर वाज इशूड बाय द कंपनी फॉर 1000 रुपीस, बट एट द सेम टाइम दे आर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स which turns out 900 रुपीस ओनली। तो कंपनी को 1000 नहीं मिल रहे, कंपनी को कितने मिल रहे हैं, 900 रुपीस मिल रहे हैं, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको कंसीडर एक चीज करनी होगी, जब आप इशूड प्राइस को देखेंगे तो आपको कंसीडर करना होगा डिस्काउंट, और आपको करना होगा एक कॉस्ट है जिसे कहा जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ मार्केट इम्परफेक्शन, क्योंकि मेनली ये माना जाता है कि अगर आप पैसा रेज कर रहे हैं तो इस तरह की कोई फ्लोटेशन कॉस्ट या ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। बट फ्लोटेशन कॉस्ट आर समथिंग लाइक, फॉर एग्जांपल आपने जो सारी प्रोसीडिंग की, आपने पैसा इकट्ठे करने के लिए जो भी आपने प्रोसीजर अडॉप्ट किया, उसमें आपकी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी। तो आप हमेशा देखेंगे नेट, आप हमेशा देखेंगे डिस्काउंट देने के बाद, फ्लोटेशन कॉस्ट को बेयर करने के बाद आपके पास इनफ्लो कितना आएगा। एम आई करेक्ट, एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो आप अपने इनफ्लोज को देखेंगे, इनफ्लोज को आप देखेंगे, नेट इनफ्लोज को, नेट इनफ्लोज को हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चंस में दिया गया होता है नेट इनफ्लोज। आपसे बोल देगा 10% डिस्काउंट, आपसे कहा जाएगा 1000 रुपए का डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट है, 5% इज फ्लोटेशन कॉस्ट।
it is 950, 850. 900 minus 50, 850. 850 कैसे आया? 10% of 1000, 100 rupees. So first you will deduct 100 rupees, then the 5%, obviously 5% of 1000, right? तो 900 minus 50 equals to 850. तो कंपनी के पास तो 850 ही आया ना, ये सुन लो यस सर। ना। ये तो हमने इनफ्लो को समझा कि इनफ्लोज हो सकते हैं, कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने डेप्थ फंड स्टार्ट नहीं किया फॉर्मली, मैं आपको अभी पहले इनके मेन कॉन्सेप्ट बताऊंगा। नाउ द सेकंड वन इज आउटफ्लोज। व्हाट कैन बी द आउटफ्लो? देखो मैंने आउटफ्लो की एक लाइन थोड़ी लंबी बनाया, आई मीन ये इट इज लिटिल लॉन्गर देन दिस। हाँ जी बोले। सर हाँ बोलो। सर आपने इशूड प्राइस में प्रीमियम वाला केस क्यों नहीं लिया यहाँ पे? तो प्रीमियम का केस हो सकता था, वो बिल्कुल हो सकता है, बट मैंने आपको डिस्काउंट लगा के बताया। प्रीमियम का तो हमें पता है ना कि प्रीमियम में तो आपको पैसा ज़्यादा ही मिलेगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस ठीक है। सर। तो ज़्यादातर जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसमें डिस्काउंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने आपको डिस्काउंट का ही एक व्यू दिया है। इन केस इफ इट इज अ प्रीमियम, इफ द प्रीमियम इज ऑल्सो गिवन, देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर द प्रीमियम। ठीक है। ओके। गॉट हाँ। तो इनफ्लोज की अब मैं आउटफ्लोज की बात करूँ। देखो आउटफ्लो का यू कैन सी द आउटफ्लो बॉक्स इज लिटिल लॉन्गर, लिटिल इन लार्जर इन साइज इन कंपेयर टू द इनफ्लो। आई डिड इट डेलिबरेटली। द रीजन इज पैसा तो एक बार आएगा, लेकिन कॉस्ट जो आउटफ्लोज हैं वो तो आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होते रहेंगे। इन केस इफ इट इज अ डिबेंचर, इन केस इफ इट इज इक्विटी, इन केस इट इज द प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग, क्योंकि आपको उन्हें किस तरह के पैसे देने होंगे? आपको दो तरह के पैसे देने होंगे। देयर आर टू टाइप। देखो समझ आ रहा है नहीं आ रहा मुझे बताओ अच्छे से। तो ये रिपीट कर दीजिए सर। क्या क्या बताओ? आउटलुक। हाँ वो बता रहा हूँ, डोंट वरी, मैंने भी समझाया ही नहीं है वो, तो वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा आप बताइए, व्हाट इज योर नेम जो पूछ रहे हैं? यस। अच्छा रिताबा, ओके ठीक। सो रिताबा देखिए, एक बहुत सिंपल सा केस है। आपने पैसे लिए, फॉर एग्जांपल आपने डिवेंचर इशू किया, आपके पास पैसे आ गए। तो रिताबा आपके कुछ दो तरह के आउटफ्लोज होंगे। एक आउटफ्लो तो होगा जो आपका रिकरिंग नेचर का होगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डिवेंचर द रिकरिंग नेचर ऑफ द आउटफ्लो इज इंटरेस्ट। आपको पीरियोडिकली इंटरेस्ट देना होगा सर्टेन रेट पर। क्लियर है रिताबा? बताइए। हेलो। हेलो। Yes, sir. I'm sorry, sir. I was able to open my mind. Yes, sir. सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। इज शी कनेक्टेड और शी इज लेफ्ट? She is there, sir. ओके ओके फाइन। ठीक है, तो आई बिलीव उन्हें समझ आ रहा है बिकॉज मुझे उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो आउटफ्लो में मान लेते हैं फर्स्ट वन इज अ रिकरिंग नेचर। रिकरिंग नेचर इज बिकॉज यू हैव टू पे द पीरियोडिकल पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, in the form of interest, or in case of the debenture, for in case of the preference shareholder it can be the dividend, it can be the dividend, right? It can be the dividend। तो एक तरह की पेमेंट तो ये होगी, आउटफ्लो आपका इस तरह से होता रहेगा। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ आउटफ्लो, अब आप ये भी तो करेंगे ना, एक टाइम के बाद आपको पैसा वापस भी करना होगा। फॉर एग्जाम्पल द डिबेंचर्स दे वर इशूड बाय द कंपनी फॉर अ 20-year टाइम पीरियड। तो ये तो 20-year टाइम पीरियड है, इसका मतलब 20 साल तक तो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। एंड बाय द एंड ऑफ द 20th year द कंपनी विल पे द प्रिंसिपल अमाउंट व्हिच इज द डिबेंचर अमाउंट। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. मेक्स इट मेक सेंस कि आप एक पेमेंट करेंगे, वन टाइम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट करेंगे आप। वन टाइम पेमेंट, expiration of the time period, just we are expiration of time। आप बोलेंगे लीजिए अपने 1000 रुपये वापस, राइट? हमने आपको वो शेयर डिस्काउंट करके दिया था 900 में, राइट? अब आप लीजिए हमसे 1000 रुपये। कब? कब? 20 साल के बाद।
if the time period was 20 year. I hope this idea is clear to everyone. Yes class. ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल समझने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इस तरह से चीजें बताई नहीं जाती, इसलिए कई बार क्या होता है हम न्यूमेरिकल्स को गलत जज कर लेते हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरेस्ट हियर, the inflow was the amount we received and the outflow, these are the outflow and these are the two outflows. अब देखिए कहीं ना कहीं अगर आप मिस्टर एक्स हैं फॉर एग्जाम्पल, आप मिस्टर एक्स हैं, तो आप ये नहीं जानना चाहेंगे जो मुझे इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ 20 years मिला, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो? यस और नो क्लास? Yes, sir. आपको जो 20 साल के बाद जो एक पेमेंट मिली उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो, तभी तो आप देख पाएंगे ना कि मुझे इस डिवेंचर से कितना रिटर्न मिला है. यस और नो? यस सर. राइट. Yes, sir. तो मिस्टर एक्स का रिटर्न तो वो होगा. अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, कंपनीज एबीसी लिमिटेड. एबीसी लिमिटेड, सी हर केस में ये माना जाता है कि आप क्या करेंगे. मुझे सीधी सी बात है, अगर कंपनी ने यहाँ पर 850 रुपीज रिसीव किया है तो कंपनी इज ऑब्लाइज्ड टू पे दिस एग्जैक्ट 850 रुपीज थ्रू आउट 20 years. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. भाई अगर मैं मिस्टर एक्स हूँ तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये कहता है कि भाई मैंने अगर 800 मैंने 850 फॉर एग्जांपल 900 रुपए, तो मिस्टर एक्स के हिसाब से तो 900 रुपए हैं, ठीक है. मिस्टर एक्स ने 900 रुपीज दिए हैं, तो मिस्टर एक्स के हिसाब से वो 900 रुपीज मिलने वापस चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ 20 years, या उससे ज्यादा भी मिलना चाहिए. यस और नो? Yes, sir. And company के point of view से, company, if the company is receiving 850 rupees, the company has to make sure that 850 rupees जो company को मिल रहा है, company को at least 850 तो pay करना ही करना है. Yes or no? Yes, sir. Okay. So what company can do here? Company can equate them. Company can equate them. जो भी inflows आपको present में मिले, आज मिले, और जो आप आउटफ्लो, जो आपकी जेब से पैसा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और वन टाइम पेमेंट आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम, वो सब मिलाकर उसकी प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो के बराबर होनी चाहिए. यस और नो? Yes, sir. राइट. जिस रेट पर वो बराबर होगी उसे क्या कहा जाएगा? कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. एम आई क्लियर? Yes, sir. राइट. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट. Equity too, sir? Yes, obviously it is equity also, but हाँ इक्विटी में नेचर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना. वन टाइम पेमेंट जरूरी नहीं है कि वन टाइम पेमेंट हो, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड इज नॉट सर्टेन. राइट. मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है कि these are the two आउटकम फ्रॉम एनी सोर्सेस, इंटरेस्ट या डिविडेंड. मैंने आपको वन टाइम पेमेंट बताया, बट क्वेश्चन यहाँ पे आप लगा सकते हो स्टार, वन टाइम पेमेंट इन केस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स एंड इन केस ऑफ डेब्ट मनी. अब आप ये मत बोल देना किसी से कि सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो इरिडीमेबल होते हैं, लगता है ऐसा? प्रेफरेंस शेयर्स दे आर इरिडीमेबल, ध्यान रखना, ये फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है. प्रेफरेंस शेयर्स नाउ इरिडीमेबल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स दे आर रिडीमेबल. The maximum time period for which a company can issue the preference shares are, what is the time period? Maximum time period is what? कितने साल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया जा सकता है? एनी आइडिया? No, sir. 20 years, 20 साल, 20 साल के लिए किया जा सकता है. और इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स it can be issued for 30 years, but there are some terms and conditions. But in general, preference shares can be issued for a period of 20-year time period. हमेशा ध्यान रखना, 20 साल से ज़्यादा नहीं. अगर 20 साल से ज़्यादा करना है तो उसका अप्रूवल होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का नोट उसके लिए चाहिए होता है. ठीक है, तो दैट्स हाउ वी लुक इनटू थिंग्स. हाँ, तो ये हमें समझ आया. अब इसी को बेस मानकर हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये समझ आया कि मैंने व्हाई आई इक्वेट दीज इनफ्लोज विद आउटफ्लोज. हेलो, हाँ हाँ यार क्लास ले लो. ओके 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 ठीक है. अब मैं ऐसा करूँ, 3 बजे तो कॉल कर ले मुझे. हाँ,
तू कर रही हो, पता है मुझे ध्यान नहीं रहता, कई बार खाना वाना बनाना पड़ रहा है ना आजकल। ठीक है, बाय। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको छोटा सा न्यूमेरिकल करा देता हूँ मैं आज की क्लास में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसको ज़्यादातर केसेस में इवन इन माय मास्टर्स इसे नहीं कराया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको हर एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता हो। जनरली ये चैप्टर ने स्किप कर दिया जाता है, डायरेक्ट हमें बताया जाता है कि फाइनेंशियल लीवरेज क्या होते हैं और ऑपरेटिंग लेवरेजेस क्या होते हैं। ये मैं चैप्टर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी इवन व्हेन यू विल गो टू योर मास्टर्स। तो आपको डायरेक्ट सरप्राइज नहीं मिलेगा कि कैसे वाईटीएम कैलकुलेट करते हैं, कैसे बॉन्ड्स की मेच्योरिटी कैलकुलेट करते हैं, तो डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेरी स्पीड इज इट इज लो, इट इज लिटिल लेस, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्यों इस तरह से करा रहा हूँ चीज़ें। नाउ अब हम बात कर रहे हैं इरिडीमेबल। इरिडीमेबल हमने मान लिया है, ऐसा होता नहीं है इन रियलिटी। द डेट फंड्स दे आर इरिडीमेबल, बट इन केस इफ द डेट फंड्स आर इरिडीमेबल, okay, so in case if the debt funds are irredeemable, what is going to be the cost of these irredeemable debt fund? आपको समझने की जरूरत है क्या। अगर ऐसा कोई डिवेंचर है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिवेंचर एंड दिस डिवेंचर नेम इज आई I debenture, which is irredeemable debenture. What does it mean? It means this is not going to be redeemed by the company in the lifetime. Yes or no? In lifetime of the company. Yes or no? Yes, sir. Okay. तो इसका मतलब आप मुझे बताइए कि पेमेंट कौन सी पेमेंट होगी, किस तरह के आउटफ्लोज होंगे कंपनीज के, बताइए। इंटरेस्ट होगा क्या, Yes. वन टाइम पेमेंट होगी, Interest, No, sir. sir, हाँ कैसे कैसे होगी वन टाइम पे पेमेंट, करेगी कंपनी। नहीं होगी ना वन टाइम पेमेंट, इट्स नहीं होगी। इरिडीमेबल All डिवेंचर, it's redeemable. Okay, राइट। sir. यानी कि आप कंपनी ने कहा कि देखो आप चाहो तो 100 साल के लिए हमें पैसा दे दो, लेकिन ना पैसा वापस मत मांगना, जो भी हम देंगे आपको इंटरेस्ट देंगे, यही तो कुछ मतलब है ना, यस और नो, Yes, 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 sir. sir. राइट। तो इस केस में आपकी सेकंड वाली पेमेंट नहीं होगी। देखो जैसे ये वाला केस बताया था ना मैंने आउटफ्लो के केस में, ये वाला अभी नाउ, and the interest payment you will be receiving, that interest payment is known as annuity interest or perpetuity interest, क्या कहा जाएगा। Perpetual interest, sir. Yes, very good, perpetual interest, or it is also known as perpetuity, perpetual interest. Now this perpetual interest means, perpetuity का मतलब होता है, what does it mean by this perpetuity, हाँ जी, लाइफ टाइम के लिए सर। Lifetime. यस फॉर एवर, ठीक है, फॉर एवर, ठीक है। तो जो फॉर एवर है यानी आपको इंटरेस्ट हमेशा मिलता रहेगा। तो जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगी वो इसी इंटरेस्ट के बेस पे निकलेगी, राइट। नाउ द फॉर्मूला ऑफ इन सच अ केस, मैं आईडी लिख रहा हूँ, आईडी का मतलब इरिडीमेबल डिवेंचर्स की कॉस्ट, आईडी के, इट इज नॉट, आई डोंट नो, इट इज इरिडीमेबल डिवेंचर की कॉस्ट, इट इज समथिंग, this is the interest rate multiply what, multiply tax shield divided by issued price, minus any flotation cost or discounts। इन सबको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, विथ 100। समझ आया इस खास, Yes, sir. ओके क्या समझ आया। ये तो मैंने टेक्स्ट शील्ड तो कुछ बताया ही नहीं, आई डिडंट टॉक अबाउट दिस टेक्स्ट शील्ड। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टेक्स्ट शील्ड। देखिए डिवेंचर का एक फायदा भी है जो डायरेक्ट नहीं दिखता हमें, इनडायरेक्टली दिखता है। If you know, if you remember when we were doing the capital busting questions, I hope you all know
आई वॉज रिपीटेडली टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट टैक्स शील्ड कि आप अगर डिवेंचर से पैसा ले रहे हैं, आप उधार या कर्ज से पैसा ले रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको उस पर टैक्स शील्ड मिल जाती है उस इंटरेस्ट पे। याद आ रहा है? Yes, sir. राइट। तो वो क्यों होती है आपको फॉर्मूला पता भी होगा। अब मैं बताऊं या ना बताऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोगों को याद रहता भी है नहीं रहता? याद है सबको? याद है सबको या नहीं है? सर नहीं, एक बार बता दीजिए। ओके। ईबीआईटी होता है हमारे पास, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब क्या करते हैं, देखिए आप सीक्वेंसिंग क्या होती है, आई आप पहले माइनस करते हैं, उसके बाद टी माइनस करते हैं, ये सीक्वेंसेस होती है, आपको सबको पता होगा। फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड पे देखते हैं, ठीक है। ईबीआईटी इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस किया, देन वी हैव व्हाट, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद टैक्सेस लगे। अब कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट पहले डिडक्ट हो चुका है रिदाबा, यस। यस सर। अगर आपका इंटरेस्ट पहले डिडक्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो जिस पोर्शन पे द इंटरेस्ट विच इज डिडक्ट उस पे भी टैक्स लग जाता। ये सुनो रिदाबा, यस सर। राइट। तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट पार्ट, बिकॉज ऑफ दिस फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस विच इज इंटरेस्ट, उससे आपका कुछ टैक्स बच गया है रिदाबा। यस सर। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टैक्स शील्ड। ठीक है, अब समझ आया, टैक्स शील्ड कहा जाता है। यस सर। आप मुझे बताइए, अगर इंटरेस्ट रेट है 15%, इंटरेस्ट रेट है 15% एंड टैक्स शील्ड है, इंटरेस्ट टैक्स रेट ऑफ 40%, तो कहीं ना कहीं आपका एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आएगा 15%, 1 - 40%, क्योंकि टैक्स रेट माइनस हो रहे हैं। इफेक्टिवली कितना आएगा, 15% मल्टीप्लाई 60 विच इज 9%। समझ आया? Effectively it will be 9%. 5 6 are 9, 15 6 are 90. Am I clear? Yes class? यस सर। ठीक है। तो आई कैन इम्प्रोवाइज दिस फॉर्मूला नाउ एंड आई कैन राइट दिस फॉर्मूला लाइक दिस। मैंने टेक्स्ट शीट अलग से लिखा था क्योंकि मुझे लग रहा था आप में से कुछ को नहीं पता होगा। ये इम्प्रोवाइज फॉर्मूला है। तो आई डोंट नो, सॉरी, इरिडीमेबल डिवेंचर की कॉस्ट इक्वल्स टू जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई 1 - टैक्स रेट। कैन आई राइट इट लाइक दिस? 1 - टैक्स रेट को टैक्स शीट को ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर। राइट, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस इन शॉर्ट, इशू प्राइस स्टार। इशू प्राइस स्टार रिफ्लेक्ट व्हाट? इशू प्राइस स्टार रिफ्लेक्ट्स कि जिसमें से आपके फ्लोटिंग कॉस्ट भी माइनस होंगे, डिस्काउंटिंग भी माइनस हो जाएगी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है अगर आप जानना चाहते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर्स की कॉस्ट। एम आई क्लियर क्लास? क्लियर सर। समझ आया? सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको वो चीजें क्लियर है? क्लियर सर। Yes, sir. Okay, good, good. What I'm going to do now, I'm going to save this file today क्योंकि कल मुझे यहीं से आगे करना होगा। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी मैं आपको कल ही सर करूँगा। हाँ जी बोले। सर वो 1 - टैक्स रेट क्यों किया, एक बार फिर से बता हाँ, दीजिए। 1 - टैक्स रेट इसलिए किया है, एक सेकंड, सी दिस 1 - टैक्स रेट। एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। ओके, आपका ईबीआईटी कितना है? आपका ईबीआईटी है 40,000 फॉर एग्जांपल। इंटरेस्ट है 5,000, यानी आप डिवेंचर्स पे 5,000 इंटरेस्ट पे करते हैं, आई विच इज इंटरेस्ट, एंड टैक्स रेट्स आर, टैक्स रेट इज 40% फॉर एग्जांपल। नाउ अब आप क्या करेंगे, 40,000 - 5,000 यू विल हैव ईबीटी, यस और नो? यस सर। कितना? 35,000। नाउ टैक्स आप लगा देंगे कितना? 40% पर, राइट। 40% कितना हुआ इसका? 14 और 37, 28 नहीं,
3,500 बताओ मुझे 14,000 ना ये सुनो यस सर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा इसका 60% विच इज 60% होगा 21,000 ये भी क्लियर है यस भाई यहाँ तक क्लियर है आपको नहीं है जल्दी बताए यस बिकॉज सर। नेक्स्ट क्लास ठीक है थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ और जल्दी जल्दी बताओ अब मान लेते हैं ये इंटरेस्ट नहीं है अगर फॉर एग्जाम्पल ये इंटरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो EBIT कितना होता 40,000 इंटरेस्ट है 0 EBT would have been 40,000 टैक्स लग गए 40% विच इज 16,000 ये सुनो यस सर। आपका पैट कितना आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24,000 क्लियर है यस नाउ सी द डिफरेंस यहाँ पे टैक्स कितना लग रहा है मनीष 14,000 एंड यहाँ पे 16,000 तो 2,000 की टैक्स सेविंग हुई या नहीं हुई यस सर। हुई कैसे हुई आप देख लो फॉर्मूला लिख लो इंटरेस्ट पेमेंट 1 माइनस टैक्स रेट इंटरेस्ट पेमेंट कितना था इंटरेस्ट पेमेंट वॉज 5,000 1 minus tax rate which is 40% 5,000 multiplied 0.6 3,000 what does it mean इसका मतलब सिर्फ 3,000 वो सब्जेक्ट टू टैक्स यानी 2,000 का टैक्स बचा ना 5,000 में से 3,000 माइनस 2,000 इज अ टैक्स सेविंग यस और नो यस सर। ठीक है तो ये वही कॉन्सेप्ट है इज दैट क्लियर एवरीवन यस यस सर। Yes. यानी कि सीधी सी बात है इस इंटरेस्ट की वजह से मुझे 2,000 टैक्स कम देना पड़ा 2,000 कम टैक्स देना पड़ा तो आप मुझे बताइए इफेक्टिवली 5,000 का इंटरेस्ट मुझे कितने का पड़ा 3,000 का ही तो पड़ा यस और नो यस और नो भाई मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ 5,000 का मेरा टैक्स बच रहा है उसकी वजह से 2,000 तो effectively the effect of my interest the net interest which I am paying is not 5,000 it is 5,000 minus 2,000 which is 3,000 तो मैंने यही तो बताया ना इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है तो वहां पर फॉर्मूले में भी मैंने वही लिखा है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट अब क्लियर है सबको Yes, sir. ठीक ओके फाइन गुड तो ठीक है नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और आप याद रख लीजिए ये वाली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स discussion of the topic. That's why I request you all, please do take classes regularly. Do not miss any of the classes. And since my drive is almost full because of the recordings, I may not be able to record any more or more classes in future. और अगर मैं करूँगा तो मैं पहले वाली क्लासेस डिलीट करता जाऊँगा ठीक है तो आप इसलिए रिकॉर्डिंग पे रिलाई मत करना आप कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर क्लास ठीक है आई होप अटेंडेंस इज डन Yes, sir. okay good thank you so much you all you may leave now I have my next class Thank you, Thank sir. you, sir.